Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, chemical reactions. So today we are going to discuss the topic chemical reactions and their balancing the chemical equations. ठीक है? So let's get started. Define chemical equation. A chemical equation is the representation of chemical equations in terms of symbol, formula and sign. ठीक है? आपके पास ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, केमिकल इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है और केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स होते हैं. ये देखें आपके पास, अगर आप ये आपके पास एटम्स हैं. ठीक है, इनके आपके पास क्या है, सिंबल है. सल्फ़र का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का सिंबल है. ठीक है, फार्मूले देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन कंबाइन एंड रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. अब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, SO2. ये चीज़ हमारे पास फार्मूलाज हो गए. साइंस अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशंस होती हैं उनके फिजिकल स्टेट्स होती हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे सल्फ़र को देखें तो ये S लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट में. इसका मतलब ये कि सल्फ़र किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में. ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैशियस फॉर्म में है. ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था ना मैटर की थ्री जो है ना वो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, तो ये हमारे पास वो है सॉलिड, गैस. ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो अब हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, जो है गैस की फॉर्म में. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एटम्स हैं, उनके फार्मूला हैं, उनके सिंबल्स हैं, साइंस हैं, ये सब किस चीज़ में होती हैं आपके पास, एक केमिकल इक्वेशन में. ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है, फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है और साइन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय दी एरो. ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं जिन दो केमिकल रिएक्शंस ने जो है रिएक्ट करना होता है. ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय एन एरो. ठीक है, symbols and formulas of reactants are written on the left hand side as we have already discussed, is whereas the products are written on the right hand side. The arrow is directly toward the product. जो arrow का sign होता है उसकी direction किसके पास होती, किस साइड पे होती है, products की साइड पे होती है. ठीक है, physical states of reactants and products are also expressed along with their formulae or symbols by solid, liquid, gas and aqueous. Aqueous भी आपके पास liquid form में होती है. ठीक है, which stands for solid, liquid, gas and aqueous states respectively. Obviously here you can see the physical states of reactants and products. Sulfur is in solid state, oxygen is in gaseous state, sulfur dioxide is in gaseous form. ठीक है, so for example, the chemical reaction representing the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide in written as follow. Obviously when we do the chemical reactions of sulfur with oxygen, then the product will be sulfur dioxide. ठीक है, the chemical equation written above shows that sulfur is in solid state, react with oxygen gas. ठीक है, obviously sulfur is in solid state and sulfur is going to react with oxygen which is in gaseous form. The products of reaction sulfur dioxide is also a gas. When we find out the product, here you can see the product sulfur dioxide. Now the physical state of sulfur dioxide is in gaseous form. The sign S and G indicates the physical state of reactants and products. Here you can see the S and G. It means sulfur is in solid state and oxygen is in gaseous state. So similarly, the chemical equation given below indicates that zinc in its solid state. Here you can see zinc is in solid state, react with aqueous solution of sulfuric acid. When zinc react with aqueous solution of sulfuric acid and produce aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas. Here you can see the formula of zinc sulfate. When zinc react with sulfuric acid in aqueous state and zinc is in solid state. When they react, the product will be zinc sulfate, ZnSO4. Here you can see the formula of zinc sulfate. Here you can see the signs of the equations. Here you can see the sign of the zinc sulfate and states of the zinc sulfate, plus it will produce hydrogen and oxygen, hydrogen. ठीक है,
सो जो आपके पास जो जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, H2SO4। यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूलाज, ठीक है। एंड द स्टेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज इन aqueous form. When they both react, the product will be zinc sulfate ZnSO4 which is in aqueous state plus hydrogen H2 which is in gaseous form. So I hope you can you have to, if you have any confusion related to the topic then you can ask to me, but I'm sure कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। Okay, now we are going to discuss balancing the chemical equations, ठीक है। First of all, you have to give the heading of balanced chemical equation. The chemical equation in which the number of atoms of each element on the both side of equation, for example reactant sides and product sides are equal, is called balanced chemical equation. For example, the chemical equation shows below is a balanced chemical equation, ठीक है। balanced chemical equation क्या होता है, आपके पास ये क्या है, इस जगह पे reactants हैं, इस जगह पे क्या है, products हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो इन products के साथ जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 लग जाए, ठीक है, या 3 वगैरह हो जाए, ठीक है, तो इनके हमने नंबर ऑफ एटम्स देखने होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितना है, 1, एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटम जो है वो एक ही है, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद जब वो रिएक्ट कर रहा है, Na होता है हमारे पास सोडियम, ठीक है, और OH हमारे पास होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1, मतलब जिसके साथ कोई ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो 2 लिखूँगी तो अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, सोडियम हो जाएंगे 2, ठीक है। लेकिन जिसके साथ कोई भी नंबर ना लिखा हो उसके साथ कितने एटम्स होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है, ठीक है। NaCl हमारे पास स्टेबल सॉल्ट होता है जो अब घरों में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉल्ट उसको हम, वो NaCl होता है। अब यहाँ पे NaCl बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स हमने यहाँ पे देखे थे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे H2 हो गया, मतलब कि कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। रिएक्टेंट्स में हम देखें तो एक हाइड्रोजन ये था और एक हाइड्रोजन ये था, ठीक है, हो गए। H2 तो यहाँ पे होगा। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई और ऑक्सीजन है नहीं, एक ही ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम क्या है, एक ही है, ठीक है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, मैं तो यहाँ से पढ़ा रही थी वैसे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम कितने एटम्स हैं, इसके एक ही एटम है। अगर आप प्रोडक्ट्स में भी देखें तो सोडियम के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन देखें तो क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही एटम था और यहाँ पे कितने एटम है, एक। मतलब ये कि जितने एटम्स यहाँ पे थे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे थे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। सो अगर जब इक्वेशन में रिएक्टेंट्स वाली साइड भी जो है वो इक्वल होती है और मतलब रिएक्टेंट्स वाली साइड और प्रोडक्ट जो दोनों बनती हैं अगर वो इक्वल हो तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो ये जो हमारे पास है कि हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे, ठीक है। कोई भी जो है ना वो जो है वो इससे ज़्यादा नहीं, अगर इनसे ज़्यादा हो ना यहाँ पे तो वो फिर अनबैलेंस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। सो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element on the both side of the equation, reactants and products are not equal is called unbalanced equation, ठीक है। अगर reactants में भी रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स हों वो अगर इक्वल ना हो तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस मतलब ये कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है। जब इनका प्रोडक्ट बना तो अब यहाँ पे HCl बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे H के कितने एटम्स हैं, 1, और यहाँ पे कितना है, 1। तो ये तो अनबैलेंस हुआ ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए, ठीक है। जितना रिएक्टेंट्स होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स होना उनके सेम होने चाहिए, ठीक है।
अनबैलेंस इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय डिफरेंट मैथड्स। हम लोग को जब भी रिएक्शन करवाना होता है, जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप उसको ना अनबैलेंस नहीं रखते। अगर आप उस इक्वेशन को अनबैलेंस रख देते हैं तो फिर वो क्रॉस हो जाती है, ठीक है। सो आपने इक्वेशन को हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये आपकी थ्रू आउट द लाइफ जो है ना ये चीज़ आपकी चलती रहती है। आप अभी से यहाँ पे सीखेंगे अगर बैलेंस इक्वेशन तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट मैथड्स होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हमारे पास मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोफिशिएंट बिफोर सिंबल और फॉर्मूला इज कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वल, बोथ साइड द इक्वेशन बिकम इक्वल, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंबल से पहले लिखा हुआ है बिफोर सिंबल, ये सिंबल है, इससे पहले हम कोफिशिएंट्स को जो है ना वो जो है एडजस्ट कर देते हैं, और ये तब तक ये प्रोसेस होता है जब तक हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद रूल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर सकें, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा आप। राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, ठीक है। अब मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको दे देती हूँ ताकि आपको जो है ना वो समझ आ जाए। हमने भी पीछे अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ा था ना, मैं उसी को जो है ना वो ले लेती हूँ। अब इस हम स्टेप को कंपेयर करते हैं। राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ द एरो, ठीक है। मैंने ये एक अनबैलेंस इक्वेशन ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या प्रोडक्ट क्या एलिमेंट्स है, मैं यहाँ पे लिखूँगी रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगी प्रोडक्ट्स, ठीक, और लिखेंगे हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है दोनों साइडों पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट्स के ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास कौन कौन से जो है एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन कितने हैं 2, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 2H, ठीक है, मतलब 2 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है, और 2 यहाँ पे कितने एटम्स हैं किसके? क्लोरीन के। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट में तो हमारे पास H2 या कुछ भी नहीं है ना, मतलब ये कि जिनके साथ कोई भी साइन ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, तो वो होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम है, और क्लोरीन भी कितने हैं? 1 एटम। ये हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्किंग विद 1 एलिमेंट एट द टाइम, हमने एक ही एलिमेंट पे एट अ टाइम काम करना है, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है तो हम पहले इन दोनों में से पहले हम एक एलिमेंट लेंगे जिसको हमने बैलेंस करना होगा। मल्टीप्लाई द सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स 2, 3, 4, 5 ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस, ठीक है, एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिव स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आपने जब बैलेंस करना होता है ना तो आपने फ़ौरन से 5, 6, 7 नहीं लिख देने यहाँ पे, सबसे पहले आपने स्मॉल इंटीजर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने जो है एटम्स हैं, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ये जो बन रहा है हमारे पास HCl है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने स्मॉल एलिमेंट स्मॉल के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है, 2H एटम्स, ठीक है। आपने देखना होता है कि सबसे लेस कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे लेस कौन है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है? हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 1 है, 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, अब आपके पास हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमने एक एलिमेंट को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन हैं? 2, यहाँ पे कितने क्लोरीन हैं? 1, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे अब हमारे पास कितने क्लोरीन एटम्स बन जाएंगे? 2, ठीक है। तो मतलब कि ये 2 हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 के साथ ही दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को अगर आप देखें अब, तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे क्लोरीन्स कितने? 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने?
2। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस होगी ना, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स 1 बाय 1, मतलब ये कि पहले हमने जितने भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे आपने उनके लिए रिपीट करना है। पहले मैंने हाइड्रोजन को सॉल्व किया, ठीक है, फिर मैंने क्लोरीन को सॉल्व किया। नेक्स्ट है बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2N2O2Cl एट द एंड। ठीक है, अगर अभी तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में डायटोमिक का मतलब होता है, डायटोमिक का मतलब जो होता है 2 एटम्स इनमें हो। ठीक है, यहाँ पे H2N है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मॉलिक्यूल आए ना मॉलिक्यूल्स आए बैलेंस करने के लिए, तो इन इक्वेशंस को आपने एंड जो है ना, इन एलिमेंट्स को, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को आपने जो है वो आखिर में सॉल्व करना। ये हमारे पास क्या है, H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक का मतलब ये कि जिनमें 2 एटम्स हों। ठीक है, सो ये हमारे पास जो था ना बैलेंसिंग के रूल्स थे। ठीक है, आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से देखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम कल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 तो जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।